वन आफ्टर द अदर होगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये रैंडम फाइल था, ये भी कर लिया सर हमने, ये भी हमने कर लिया था ना। अच्छा, अब जस्ट ये फाइल एक्सेस को गो थ्रू कर लो, यानी अब फाइल को एक्सेस करना है, ठीक है। एक सेकंड होल्ड ठीक है सर। ओके, ये जस्ट गो थ्रू कर लो डायरेक्ट क्विकली बस। Recover for sequential file if a particular record is given. Search for every record need to be checked until the record नहीं file sorry ऊपर से पढ़ा file access था. There are very different there are different method of file access. The method used to physically find a record in the file. We will consider two of them: sequential access or direct access. Sequential access होता है, the sequential access method searches for records one after another from the physical start of the file until the record method is found. For or new record can be added to the file. The method is used for serial and sequential files. For a serial file, if a particular record is being searched for, every record needs to be checked until the record is found or the whole file has been searched and then that record has not been found. Any new records are appended to the end of the file. For a sequential file, if a particular record is being searched for, every record needs to be checked until the record is found or the key field of the current record being checked is greater than the key field of the record being searched for. The rest of the file does not need to be searched as the record the correct place in the file. For example, if the record for customer 6 was requested, each record would be read from the file until customer 7 was reached. Then it would assume that the need record for the customer 6 was not stored in the file. ठीक है सर? हाँ, क्या समझ में आया आपको? मेरे को ये समझ में आया कि अगर इस सीक्वेंशियल रिकॉर्ड का फाइल एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये है कि जब तक एक प्रॉपर रिकॉर्ड पहले अगर कस्टमर 1 का सारा रिकॉर्ड रीड होगा फिर वो कस्टमर 6 पर ट्रांसफर होगा। नहीं, सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि पहले हम कस्टमर रिकॉर्ड 1 को व्यू करेंगे, फिर कस्टमर 2 का रिकॉर्ड व्यू करेंगे, फिर 3, फिर 4, यानी हमने 6 को एक्सेस करना है, लेकिन हम 1 बाय 1 मूव करते जा रहे हैं, लेकिन 6 यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो उसमें फिर जैसे लिखा हुआ है, sequential access is efficient when every record in the file need to be processed. ये वहाँ पे efficient है, for example monthly billing or payroll system, ठीक है। These file have a high hit and during the processing as nearly every record is used when the program is run. डायरेक्ट एक्सेस का मतलब होता है कि हम जो भी रिकॉर्ड एंटर करेंगे ना, हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, मतलब इसमें हम सीक्वेंस वाइज या सीरियल वाइज मूव नहीं करेंगे। ठीक है सर। तो अब इसको गो थ्रू कर लो क्विकली। Direct access. The direct access method can physically find a record in a file without other records being physically read. इसका होता है both sequential and random file can use direct access. This allows specific record to be found more quickly than using sequential access. Direct access is required. Direct access is required. एक सेकंड सर, मैं लैपटॉप में खोलने की ट्राई करूंगा, लैपटॉप में खुल जाएगा तो आसानी हो जाएगी। हाँ, उस पे सही खोलो उस लैपटॉप पे। एक सेकंड सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड बस। लिंक पे वहाँ पे
Recording in progress. सर एक सेकंड, आवाज क्यों आ रही है? आप सही है। आवाज खत्म हुई है? आप खत्म हो गए। क्या आपको आवाज डबल आवाज तो नहीं आ रही है? अब क्लियर आवाज है? आप सही है। पीछे वो जो नॉइज आ रही थी ना वो खत्म हो गई। चलिए ठीक है सर, अब है। A direct access method can physically find a record in a file without other records being physically read. Both sequential and random file can use direct access. This allows specific record to be found more quickly than using sequential access. Direct access is required when an individual record from a file need to be processed. For example, when a single customer record need to be updated when the customer phone number is changed. Here, the file being processed has a low hit rate as only one of the records in the file is used. For a sequential file, as an index of all the key field is kept and used to look up the address of the file location where a given record is stored. For large files, searching the index take less time than searching the whole file. For random access file, a hashing algorithm is used on the key field to calculate the address of the file location where a given record is stored. हाँ, तो क्या समझ में आया इससे आपको? फिर डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि विदाउट एनी फिजिकली फाइंड रिकॉर्ड, मतलब जब आप किसी चीज का डायरेक्ट एक्सेस का मतलब होता है जब किसी चीज का किसी डाटा का रिकॉर्ड आप फिजिकली लेते हैं। मतलब नहीं, उस कहने का मकसद है कि हम किसी भी रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ गोइंग वन बाय वन, ठीक है ना? ठीक है सर, नहीं मतलब आप पूरी फाइल का डाटा एक ही बारी में ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। Karen, this सही है, allows specific record to be found more quickly than using sequential access. ठीक है सर। So direct access is required when an individual record from a file need to be processed. इसमें यानी डायरेक्ट एक्सेस वहाँ यूज होता है जब इंडिविजुअल रिकॉर्ड को प्रोसेस करना हो, और जब सारे Yes. रिकॉर्ड को प्रोसेस करना हो तो सीक्वेंशियल यूज होता है, ठीक है? ठीक है सर। ओके, अभी करें फॉर सीक्वेंशियल फाइल एंड इंडेक्स ऑफ ऑल द की। अच्छा, इंडेक्स का मतलब होता है उसकी पोजीशन नंबर, रिकॉर्ड की पोजीशन नंबर। तो हम ठीक है रिकॉर्ड का सर। पोजीशन नंबर इंसर्ट करते हैं तो डायरेक्टली उस एक्सेस को, उस फाइल को हम एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है सर। अब एक और मेथड है हैशिंग एल्गोरिथम। हैशिंग एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ना की फील्ड होती है। ठीक है सर। अब जैसे ये 3024 है ना, ये की फील्ड है। यस सर, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे किसी सर्टेन नंबर से, तो हमारे पास ठीक है सर। 104 रिमाइंडर आ रहा है। अच्छा, अब ये एड्रेस है 1024 इक्वल 0 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1024। 024। जैसे इसमें लिखा हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा इन अ फाइल, a hashing algorithm is mathematical formula used to perform a calculation on the key field of the record. The ठीक है result सर। of the calculation gives the address where the record should be found. So more complex hashing algorithms are used in the encryption of data. अच्छा, जब हम डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं ना, वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है सर। अब जैसे कह रहे हैं, if a file has a space for 2000 records and the key field can take any value between 1 and 999 के दरम्यान की फील्ड होगी, ठीक है? Then the hashing algorithm could use the remainder when the value of key field is divided by 2000. अब जो भी, अब चूंकि 2000 की स्पेस है तो किसी भी डेटा को हम 2000 डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा पर्टिकुलर रिकॉर्ड होगा। तो टुगेदर विद द स्टार्ट एड्रेस of the file and the size of the space allocated to each record. So in a simple case where the start address 0 and each record is stored in one location. So to store a record identified by a key field with value 3024, the hashing algorithm would give address 1024 and the location to store the record. अब 3024 को डिवाइड करोगे 2000 से, ठीक है? तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1024 आएगा। 1024। हाँ, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड पड़ा होगा, ठीक है? Unfortunately, storing another record with a key field 5024 will result in trying to use the same file location and a collision would occur. अच्छा, अब देखो ना, 3024 को 2000 डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर 1024 आएगा। यस और सर। 5024 को भी डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 2000 से 1024 आएगा। 1024। अब ये क्या होगा? कोलिजन हो जाएगा। ठीक है अब सर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? This often happen with hashing algorithm for direct access to record in a file. So there are two ways of dealing with this.
and open hash where the record is stored in the next free space. यानी अगर आपको ये कोलिजन आ जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट वन फ्री स्पेस है उसको आप यूज कर लें. A close hash where an overflow area is set up and the record is stored in the next free space in the overflow area. So जब कह रहा है when reading a record from a file using direct access, the address of the location to read from. एक सेकेंड. यस सर ठीक है. अच्छा, अब ये कह रहे हैं when reading a record from a file using direct access, the address of the location to read from is calculated using a hashing algorithm and the key field of the record stored there is a read. But before using that record, the key field must be cache checked against the original key field to ensure that they match. So if the key field do not match, then the following record need to be read until a match is found. Open hash or the overflow area need to be searched for a match close file. तो इसमें ओवरफ्लो भी आ जाता है. ठीक है, यानी एक सेपरेट मेमोरी बना दी जाती है जहाँ पे ये जो की फील्ड में एग्जिस्ट कर रही होगी तो अगर कोलिजन आ जाता है. ठीक है, हेलो सर सुन रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, अब ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ की फील्ड इज डिवाइडेड बाय 1000 टुगेदर with the address of the file and the size of the space allocated each record. So calculate the address to store the record with key field 9354. If this location has already been used to store a record and an open hash is used. अब ठीक है, open hash यूज करें तो उसके बाद जो next one जो free space है उसको आप यूज कर लें. So what is the address of the next location to be kept clocked? Okay. Hashing or can also be used to calculate address from name. For example, adding up the ASCII value for every character in a name and dividing this by the number of location in the file could be used as a basis for a hashing algorithm. तो अब ये प्रैक्टिकली हमें उसी को समझ में आएगा कि जब हम इसको इसके पेपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. ठीक है सर. अच्छा, ये वाला टॉपिक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ये हम कर चुके हैं सर, याद है. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं. हाँ, ये हो गया. ओके, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये भी हो गया. ठीक है. ओके, उसके बाद अच्छा, अब इनकी मैं एक्सरसाइज तो मैं भेज दूंगा एग्जाम्पल. ठीक है सर. वो आपने देखनी है. सही है सर, मैं कर लूंगा वो. ठीक है. यस सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ, ये कह रहा है कि 3 फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड
and Yes, two sir. file access methods are shown below. ठीक है सर. Copy the diagram below and connect each file organization method to its appropriate file access method. ठीक है सर. ठीक है, तो ये इसको मैच करना है कि रैंडम कौन सा है और रैंडम तो सीक्वेंशियल होता है ना, नहीं, रैंडम डायरेक्ट होता है. और सीरियल. सीरियल और ये एक तो सीक्वेंशियल दिया हुआ ना. जी सर. अच्छा, ये देखो, ये नजर आ रही फाइल आपको मैचिंग वाली. सर रैंडम जो होता है वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है, हाँ. सीक्वेंशियल भी डायरेक्ट होता है, सीक्वेंशियल भी डायरेक्ट होता है, ठीक है. और सीक्वेंशियल दोनों होता है, और जो सीरियल है वो सिर्फ सीक्वेंशियल होता है. ठीक है. सीरियल जो सीक्वेंशियल होता है और सीक्वेंशियल भी होता है पहले, यानी एक तो सीक्वेंशियल को सीक्वेंस वे में यूज कर सकते हो. ठीक है. यस सर. ओके, एक सेकेंड. अच्छा, ठीक है. तो अब इसमें क्या दिया हुआ है? यूजिंग देयर ऑनलाइन अकाउंट. नहीं, यहाँ से पढ़ो. एन एनर्जी An कंपनी. energy company supplies electricity to a large number of customers. Each customer has a meter that records the amount of electricity used. Customers submit meter readings using the online account. The company's computer system stores data about its customer. The data includes account number, personal data, name, address, telephone number, meter reading, username, and encrypted password. Customer system uses three files: account number and meter reading for the account. फॉर द करंट मंथ. Current month. Yeah. Customer each time a customer submit their reading, a new record is added to the file. ठीक है. Customer personal data at the end of the month to create a statement that shows the electricity supplies and the total cost. Username and encrypted password when customer log in their account to submit meter readings. ठीक है. For each of the file A, B, and C, state an appropriate file organization method for the use given in the table. All three file organization methods must be different. यानी वो Justify your answer. तीन मेथड हमने पढ़े ना, Yes, सीक्वेंशियल, sir. सीरियल और रैंडम, कि वो इन तीनों में कहाँ कहाँ अप्लाई होगा. Yes, sir. तो और उसकी जस्टिफाई भी करना होगा. तो ठीक क्या है. आइडिया गेस करते हो? तो मेरा ख्याल है give for each of the file A and B, C, state an appropriate file organization. तो file organization कौन से वाले होंगे? जैसे वही एक तो देखो ना, जो पहले ए को देखो ना, फाइल ए, अकाउंट नंबर एंड मीटर रीडिंग फॉर द करंट मंथ. ठीक है. ईच टाइम अ कस्टमर सबमिट देयर रीडिंग, अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड टू द फाइल. अब इससे क्या पता लगता है ये सीक्वेंशियल है, सीरियल है या रैंडम है? सर वो रैंडम है सर ये. नहीं, ये रैंडम नहीं है. इसमें ये देखो, ये लिखा हुआ इज एडेड टू द फाइल. सर फिर सीक्वेंशियल है. एक सेकेंड. ये बेसिकली सीरियल है. किस तरह सर? देखो, सीरियल में क्या होता है, हम मतलब जो भी रिकॉर्ड आ रहा था ना उसको हम स्टोर करते चले जाते हैं, वन आफ्टर द अदर. ठीक है सर. ये देखो, ये लिखा हुआ ए सीरियल है. अब मीटर Yes, रीडिंग sir. आर एडेड टू द एंड ऑफ द फाइल. जैसे जैसे रिकॉर्ड आ रहा है ना, यानी
वो बंदा एक आता है आपके घर की रीडिंग ली पे, दूसरे तीसरे चौथे, तो उसको रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, कोई मतलब कोई ऐसा नहीं होता मीटर नंबर 1 मीटर नंबर 2, ऐसा नहीं होता। जिस जो भी मीटर नंबर का रिकॉर्ड आ रहा है उसको हम ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अब वो कह रहा है ना कि हाँ, a meter as meter reading are added to the end of the file and stored chronologically. ठीक है सर। अच्छा, अब देखो सेकंड क्या है। बी, कस्टमर पर्सनल डेटा at the end of month to create a statement that shows the electricity supplied and the total cost. टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब हर रिकॉर्ड को रीड किया जाएगा, तो ये सीक्वेंशियल होगा। यस Sequential सर। as each customer has a unique account number and the file is sorted on the account number and there is a high hit rate. ठीक है सर। अच्छा, ये कह रहे हैं एट द एंड ऑफ मंथ टू क्रिएट अ स्टेटमेंट दैट शोज द इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब हर कस्टमर को एक्सेस किया जाएगा, उसका बिलिंग, उसका एक बिल बनाया जाएगा। ठीक है, जो कि उसका यूनिक नंबर होगा, कस्टमर नंबर उसका यूनिक नंबर होगा, शोज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड एंड द टोटल कॉस्ट। और उसको बता दीजिएगा आपने इस महीने ये रीडिंग, ये क्या बोलते हैं, इतने यूनिट आपने कंज्यूम किए और ये आपका बिल है। अच्छा, यस सर। यहाँ ठीक पे है। हाँ, इसमें लिखा हुआ यूजर नेम एंड encrypted password. So when the customer log into their account to submit meter reading, यानी when customer का रिकॉर्ड जो है लॉग इन करना हो, ठीक है, या when customers लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट में, जरा अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड देंगे, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे। किसको? ठीक है सर। उसके लिए इंडिविजुअल बताया था, रिकॉर्ड। हाँ उन्होंने बताया था ना कि ये रैंडम होता है। इंडिविजुअल रिकॉर्ड जब भी एक्सेस करना हो तो रैंडम को, रैंडम ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है। ठीक रैंडम है सर। ऑर्गेनाइजेशन अलाउस फास्टेस्ट डायरेक्ट एक्सेस to the required record, so this is suitable for access to individual record. तो ठीक है सर। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। यस सर। Using pseudocode declaration below, identify an एंड enumerated enumerated data type, data type. ये दिए हुए ना, enumerated data type using the pseudocode declaration below, identify an enumerated data type, a composite और data type, composite data a type, non composite data type, a user defined data type। अब ये दिया हुआ है pseudocode type season equal to spring comma summer autumn, autumn winter, winter type, और टाइप क्या लिखा है, जर्नल, जर्नल the रिकॉर्ड, journal record, ये हमने declare डिक्लेयर किया title, string, टाइप। declare author string, declare ये सब कुछ string करके और हाँ end type. हाँ, ये तो दिया हुआ ना, इसमें से कह रहा है आइडेंटिफाई करें इनोमिनेटेड डेटा टाइप कौन सा है, अ कंपोजिट डेटा टाइप कौन सा है, अ नॉन कंपोजिट डेटा टाइप कौन सा है, अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन सा है। 4 तरह के डेटा टाइप दिए हुए, याद है कुछ? इनोमिनेटेड, कंपोजिट, नॉन कंपोजिट। Yes sir. और के ओके, तो इनोमिनेटेड कौन सा नजर आ रहा था इसमें से? Composite सर इसमें ये वाला declare author वाला जो है। कंपोजिट नहीं, इनोमिनेटेड पहले बताओ, इनोमिनेटेड कौन सा है? सर एक सेकेंड, declare title वाला जो है सर। डिक्लेयर टाइटल में। जी अच्छा, सर।
और कंपोजिट कौन सा है? और ऑथर वाला जो है, ऑथर वाला, अच्छा नहीं, ये तो पार्ट ऑफ, ओके। और नॉन कंपोजिट कौन सा है? डिक्लेयर सीजन, और फिर नो पेज वाला नो डिक्लेयर वो है, नॉन कॉम्पोजिट वाला वो है, नो पेज वाला जो है। ये देखो, जो वो दिया हुआ है ना, इसने इन्यूमरेटेड जो पूछा है, इन्यूमरेटेड, जी सर, वो टी ये है, सीजन है। वो टी 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 टीजन, टीजन के नाम से जो है ना, वो ये है। किधर गया टाइप टीजन, ये वाला। इन्यूमरेटेड में ना लिस्ट होती है, ठीक है, स्प्रिंग कॉमा समर, ये दिया ना, एक लिस्ट दी हुई, ये इन्यूमरेटेड है। ये पहली रो जो है, ये क्या है? इन्यूमरेटेड। कौन सा रिकॉर्ड है? हेलो। यस सर। हाँ, ये कौन सा रिकॉर्ड है? पहला जो टाइप टीजन लिखा हुआ है ना, ये इन्यूमरेटेड है। नजर आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है। ठीक है, ओके। सेकंड जो है, ये जो उसने पूछा है, अच्छा ये है सेकंड उसने कॉम्पोजिट टाइप। कंपोजिट टाइप, हाँ ये वो तो है। ये फिर ये वाला होगा, टी जनरल रिकॉर्ड वाला। हाँ ये कंपोजिट है। तो ठीक है, ये वाला जितना भी है ना, ये टी जनरल रिकॉर्ड, ये सारा कॉम्पोजिट टाइप है। कंपोजिट है। नॉन कॉम्पोजिट वाला स्ट्रिंग होगा। हाँ स्ट्रिंग, ये जितने भी स्ट्रिंग है ना, ये सारे नॉन कंपोजिट है। और कौन सा पूछा उसने? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डिक्लेयर, अच्छा, तो वो ये है टी जर्नल रिकॉर्ड और टीजन। यस सर। ये जो हमने ये बनाया है ना, जो टी जर्नल रिकॉर्ड, ये सारे यूजर डिफाइन है। टीजन ठीक है सर। और टी जर्नल रिकॉर्ड, इन दोनों में से कोई एक है, लेकिन दोनों ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसको आपने रिकॉर्ड करना है। राइट सुडो कोड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल जर्नल ऑफ टाइप टी जर्नल रिकॉर्ड एंड असाइन द फॉलोइंग वैल्यूज टू द वेरिएबल। ठीक है टाइटल, सर। यानी टाइटल को आपने ये असाइन करना है स्प्रिंग फ्लावर्स, ऑथर को एच विलियम्स, पब्लिशर को एक्स वाई जेड प्रेस, नंबर ऑफ पेजेस को 40, और और सीजन को ये स्ट्रिंग रिकॉर्ड, स्प्रिंग। इसका सुडो कोड राइट करना है। ठीक है सर। ठीक है। तो अब देखो इसको, ये देखो कैसे करेंगे। हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे जर्नल, ठीक ठीक है। है सर, डिक्लेयर जनरल जे राइट जनरल सुडो होगा। कोड, ओके, टू डिक्लेयर अ वेरिएबल जर्नल ऑफ टाइप, ठीक है ना। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ठीक हम है सबसे सर। पहले लिखेंगे डिक्लेयर, फिर जर्नल, फिर उसकी टाइप क्या है? टी जर्नल, और उसमें लिखा हुआ है ऑफ टाइप टी जर्नल, ऑफ टाइप ई टी जर्नल, ये जनरल पहले से रिकॉर्ड। लिख दिया। तो हम ये इसके आगे ये टी जर्नल कॉलन डाल के टी जर्नल लिख देंगे। टाइप जब भी डाल बतानी हो तो कॉलन डालते हैं। ठीक है सर। तो फिर उसने कहा था कि इसके अंदर एंड असाइन द फॉलोइंग वैल्यूज टू द वेरिएबल, जो इसके वेरिएबल है, बिल्कुल। अब ये सारे वेरिएबल है ना पहले से जो बने हुए टी जनरल रिकॉर्ड के, ठीक है सर। ये इनको हमने ये वैल्यू असाइन करनी है। तो इसका तरीका क्या और क्या होगा कि आपने पहले जो आपने डेटा टाइप डिफाइन की हुई जर्नल, वो लिखेंगे, उस पर डॉट डालोगे, फिर उस वेरिएबल डॉट के बाद टाइटल, और एरो लगा के ये वैल्यू असाइन कर दोगे। ठीक है सर, स्प्रिंग फ्लावर्स, ठीक है। एच एच विलियम्स, एक्स वाई जेड प्रेस, 40 स्प्रिंग, ठीक है। एक्स वाई जेड प्रेस, ठीक है सर। तो इसको राइट कर लो, इस पूरे वाले को कहाँ से लेकर कहाँ तक सर बता दें? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4 ओनली, ठीक है सर। इसको राइट करो। 8 मिनट दे दें। पहले ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, ये वाला, सही है सर। फिर ये राइट कर लो फटाफट। ओके सर, लिख लो।
चलो ठीक होगा जी। सर लिख लिया। क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन। क्वेश्चन आप दिखाएं, क्वेश्चन लिख दो सर, एक सेकंड नीचे कर दें, आखिरी लाइन रहती है। अच्छा ठीक है। सर ऊपर दिखाएं, क्वेश्चन दिखा दें सर। ये वाला पार्ट बी वाला। ठीक है सर। सर लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर, आ गया। एक सेकेंड।
हाँ ये देख लो, यस सर। हाँ ये क्या लिखा हुआ है, अ फाइल ऑफ record is stored at address 500. A file record is stored in address 500. Each record takes up 5 locations, and there is a space for 1,000 records. The key field for each record can take the value of 1 to 9999. ठीक The है, hashing algorithm used to calculate the address of each record and the remainder when the value of the key field is divided by 100 together 1000. with the start address of the file and the size of the space allocated to each record. Calculate the address to store the record with key file of 9349354. Key field 935 key field. If this location has already been used to store a record and an open hash is used, what is the address of the next location to be checked? तब क्या करेंगे इसको हम डिवाइड करेंगे 9354 को 1000 से। 10,000 सर, 10,000 से 1000 नहीं है, 10,000 है सर। अरे भाई ये रहा अच्छा 1,000 से 1,000 ठीक है। 1000। तो अब वो कह रहे हैं, if this location has already been used to store a record यस सर। and an open hash is used, so what is the address of the next location to be checked? अच्छा अब ये देखो 9354 को जब तुम डिवाइड करो 1000 तो रिमाइंडर आएगा 9, ठीक है, और यस सर आंसर ठीक इज है। 354 आएगा, ठीक है। Yes, ठीक है। Now is 9 remainder is okay with 5 location for each record. So this ठीक है record सर। would be stored at address 2175 equal to 500 plus 353 multiplied 5, and the next 4 location assuming that the first record is stored at address 500. यस सर। तो ठीक है। अच्छा अब ये एक्सटेंशन वाली देखो क्या कह रहे हैं, ये वाली पढ़ो, एक्सटेंशन एक्टिविटी 13B। सर ये है एक सेकेंड 13E ये वाली 13 ये है सर जी। explain using example the difference between serial and sequential files. Explain the process of direct access to the record in a file using a hashing algorithm. Choose an appropriate file type for the following situation. Give the reason for your for the choice in each case. Borrowing books from a library, borrowing book from library. उसके बाद है providing an annual tax, unusual tax statement for employees at the end of the year, record delay rainfall reading and to a remote weather station to be collected every month. सही है सर। पहले तो इसको देखते हैं, एक्सप्लेन यूजिंग एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड सीक्वेंशियल फाइल। यस सर। तो ये दिया हुआ है सीरियल फाइल ईच न्यू रिकॉर्ड इज एडेड टू द एंड ऑफ द फाइल। सीरियल में क्या करते हैं कि जो रिकॉर्ड है ना और एंड ऑफ फाइल में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अ लॉग ऑफ टेम्परेचर रीडिंग टेकन एट अ वेदर स्टेशन, एग्जांपल भी दे दी। ठीक है सर। और फिर कह रहा है सीक्वेंशियल फाइल रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन अ गिवन ऑर्डर यूजुअली बेस्ड ऑन द की फील्ड। फॉर एग्जांपल असेंडिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय नंबर फॉर अ पर्सनल फाइल, यानी इस पर जब भी रिकॉर्ड स्टोर किया जाएगा सीक्वेंस में स्टोर किया जाएगा। जैसे तुम्हारी स्टूडेंट आईडी 1 है तो उसके बाद सेकंड स्टूडेंट आएगी, फिर थर्ड स्टूडेंट आएगी, यानी सीक्वेंस में आएगी, ठीक है, जब भी आएगी सीक्वेंस में आएगी। ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा 2 क्या था, 2 था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू अ रिकॉर्ड इन अ फाइल यूजिंग अ हैशिंग एल्गोरिथम, ये तो अभी बाद में। चूज एन एप्रोप्रिएट फाइल टाइप फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। अच्छा इसमें फाइल टाइप चूज करनी है, ये जो 3 है ना। ठीक है सर। ठीक है, पहला क्या लिखा, बोरोइंग बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। तो अच्छा बुक्स अगर बारो करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है रैंडम एक्सेस एज ओनली वन रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड एट अ टाइम, लो हिट रेट। इसका हिट रेट जो है वो लो होता है, समझ आया। यानी जब आप जाएंगे लाइब्रेरियन के पास और उसे कहते हैं मुझे एक पर्टिकुलर बुक चाहिए, तो वो सारी बुक्स तो सर्च नहीं करेगा ना, वो आपका बुक का जो भी रेफरेंस नंबर होगा, ऑथर नेम है या बुक का टाइटल है या उसका ISBN नंबर है, उसके थ्रू सर्च कर लेगा। ठीक है सर। तो उसमें क्या, जब एक सिंगल रिकॉर्ड एक्सेस करना हो तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे,
रैंडम एक्सेस फाइल एज ओनली रिकॉर्ड ये वाला करेंगे सर। हाँ, उसके बाद कह रहा है कि प्रोवाइडिंग एन एनुअल टैक्स स्टेटमेंट फॉर एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ ईयर, तो उसके लिए बेस्ट होगा सीक्वेंशियल। ठीक है सर। सीक्वेंशियल एक्सेस एज ऑल द रिकॉर्ड नीड टू बी एक्सेस हाई हिट रेट। ठीक है सर। हाई हिट रेट होता है, ओके। रिकॉर्डिंग डेली रेनफॉल रीडिंग एट अ रिमोट वेदर स्टेशन टू बी कलेक्टेड एवरी मंथ। एवरी ठीक है मंथ सर। हमने रिकॉर्ड डालना है उसमें टेम्परेचर के फाइल में ना। ठीक है सर। इसके लिए बेस्ट होता है ये सीरियल एक्सेस, ठीक है। ठीक है सर। ओके, serial access as each record is added to the end of the file in chronological order। सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? chronological order का मतलब है कि जिस तरह भी रिकॉर्ड आ रहा है उसको ऐड कर दो फाइल के अंदर, उसका कोई सीक्वेंस नंबर नहीं होता। फाइल वन आफ्टर दी अदर आएगी, ठीक है। यानी आपने रिकॉर्ड नंबर 1 डाल दिया, फिर उसके बाद 2, फिर कोई भी रिकॉर्ड डाल दिया, लेकिन उसका सीक्वेंस ऑर्डर जो है सीक्वेंस में नहीं होगा, ठीक है सर। ठीक है। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। सीक्वेंशियल का मतलब है कि रिकॉर्ड नंबर 1 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है। सीरियल में क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड नंबर हो बस आपने उसको फाइल के एंड में इंसर्ट कर देना है। सर बेशक उसकी तरतीब ना हो। नहीं, उसका अपना एक रिकॉर्ड नंबर तो होगा, लेकिन ठीक है। सीक्वेंस में ऐड नहीं किया जाएगा ना, एंड ठीक में है ऐड सर। किया जाएगा, एंड में ऐड किया जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। यस सर, समझ आ तो गई है। काफी है आज के लिए। यस, बहुत है सर। तो नेक्स्ट क्लास कब संडे को है ना, तो अब तुम्हारी 2-3 मिस क्लासेस तो नेक्स्ट वीक में मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जो क्लासेस मिस हुई है ना, तो ठीक वो है सर, डन। कमिंग वीक में मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, वो आपने कर लेने हैं मैं कर लूंगा सर, वो भेज दीजिए। इंशाल्लाह। संडे को हमारी क्लास है ना, जो नेक्स्ट क्लास। ओ यस सर, इंशाल्लाह।